everyone. A very logical day to all of you. And here, this is the first day of February, and again, we are here in the weekend. So, what have you planned for this weekend? If you remember, हमने पिछली बार का देख पूछा था आपसे फ्राइडे को मैंने पूछा था कि आपकी वाइब्स क्या हैं वीकेंड की. आज तो सैटरडे हो गया. अब आज बताइए कि आपका इरादा क्या है कि आप सैटरडे संडे में क्या करने वाले हैं. आर यू गोइंग टू लाइक जस्ट पेंट द टाउन रेड? पॉसिबल. पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है, यस आई यूज दिस इडियम, क्योंकि इसका मतलब होता है कि खूब मजे करना. ठीक है, हमारा काम हो गया, डन फॉर द वीक, और अब मजे करेंगे. लेकिन हाँ, मजे कब करेंगे? संडे इवनिंग को. तो आज क्या करना है हमें? सैटरडे और संडे मॉर्निंग को वी नीड टू पुट इन सम एक्स्ट्रा वर्क so that we are able to enjoy a Sunday evening, right? So these are small things that you can incorporate in your preparations, and let us see what we have to understand here. The first February, business not as usual. So Indian Express February month start, business start. अब बिजनेस से जो रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आते हैं आजकल. क्यों? क्योंकि बजट है, and soon you will be getting the budget also. So, with rather uncharacteristic frankness, the Economic Survey 24-25 talks about the trust deficit of economic agents in the country, overcoming which could help pave the way for a path for a Viksit Bharat. बहुत clear इसने main idea first sentence में दे दिया है, but that does not mean that it is a complete main idea. No, it has indicated one, there has been a trust deficit, there is, and you need to overcome this. When you overcome this, then you can achieve this dream of, ये देखो, ओवर डेफिसिट है, ओवरकम करना है, विकसित भारत की तरफ आ जाएंगे हम. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, ऐसे ऐसे रिंग्स होती थी, ऐसे बच्चों के खिलौने होते हैं ऐसे. ठीक है, देन दे इट इज लाइक दिस. सो व्हेन यू कम अप विथ पॉइंटर्स, so you'll be able to identify कि ये इसकी मेन आइडिया क्या है. इतना इजी तो है ये वर्ड. ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसे ओवरकम करना पड़ेगा, जरूरी है, और फिर हम विकसित भारत की तरफ चल निकलेंगे. ये भी जरूरी है. हो गया फर्स्ट पॉइंट आपके पास. सो दिस कंप्लीट थिंग इज योर पी. नाउ ट्रस्ट इज इंडीड अ टू वे स्ट्रीट, and it is perhaps because of this trust deficit that the private investment cycle has not taken off. टू वे स्ट्रीट है, तो गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट होना चाहिए लोगों पर, और लोगों को भी ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट पर. ट्रस्ट डेफिसिट है, and that is the reason why the private investment cycle has not taken off. तो इतना भरोसा अभी प्राइवेट प्लेयर्स को पॉलिसीज पर नहीं हो रहा है, या बिजनेस पॉलिसीज पर. मतलब देयर इज स्टिल समथिंग लैकिंग, and that is the trust factor, despite the tailwind of strong firm and bank balance sheets. So if the businesses are quite strong, right, they are in the black, right, still investment cycle is suffering a little. Suffering in the sense that they are not able to like fly high. Now the survey says, and rightly so, that wiping out the trust deficit in the country is imperative, and government agencies have to set the agenda in this regard. करना ही पड़ेगा ये, right? So imperative यानी something that you have to do. So something that is a sine qua non will be imperative, mandatory, compulsory. ये तो करना ही है, indispensable. Yeah, there would be so many words to do. So what you have to do is wipe out the trust deficit. मिटाना पड़ेगा पूरी तरीके से. That is wipe out. But only a narrow interpretation of this statement would view government agencies as limited solely to the IT department, CBI and ED. It includes the entire state apparatus. Narrow interpretation. अगर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज को, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज को ट्रस्ट फैक्टर वापस से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उन्हें कुछ तो काम करना पड़ेगा. एंड देन व्हेन वी से दैट प्राइवेट एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसीज वुड इंक्लूड व्हाट? आईटी सेक्टर, आईटी डिपार्टमेंट, सॉरी, सीबीआई एंड द ईडी. सिर्फ इसी को हमने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स माने, तो हियर वी आर रॉन्ग, राइट? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, it is the entire state apparatus that is the government agencies. It is not a narrowed version of it. So building trust may well be the key, but the question is whether this spirit finds reflection in the budget and the government's working. क्या बजट में ये सब दिखाई देगा कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो,
जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो सेकेंड पैराग्राफ और सेकेंड पार्ट, it is very imperative. And third point, whether it will be reflected in the budget. So the first paragraph overall gives us 2 to 3 main phrases, right? Let us enumerate them like this. So there is a trust deficit, and because of this trust deficit, what is happening? It gives right to, or the private investment has not, sorry, taken off होगा ये, ठीक है. और टेकन ऑफ नहीं हुआ है क्या? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं हुआ है, ठीक है. So private investment has not taken off. So then what? Now this trust deficit has to be overcome. When it will be overcome, then it will give rise to or help us achieve Viksit Bharat. यहां तक तो सब सही है, ठीक है. इसके लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरकम करना. इंपॉर्टेंट क्या होगा? गवर्नमेंट एजेंसीज, they have to come up with a very clear agenda, right? और ये एजेंडा, क्लियर एजेंडा दिखेगा कहाँ पे? उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ ओवरकम करना है और बहुत जरूरी है करना, इट इज वेरी इंपेरेटिव, बट हाउ एंड वेयर विल इट बी रिफ्लेक्टेड? इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बजट ऑल्सो. बजट में इसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. होगा या नहीं वो आज देखेंगे हम, ठीक है. नाउ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज आर्टिकुलेटेड द गोल ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047. 47 तक हो जाएंगे हम विकसित. Achieving this would require growing at around 8% for a decade or more as per the survey. Now see what is happening. He has set this goal. So you also set the goal and then you come backwards कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है. And then that day I gave you smart होता है ना, achievable और measurable भी. तो अगर आपने गोल यहाँ पे कर लिया है, जो भी है, right, whatever goal has been set, and then you see that today is February and whatever you have set should be time bound. And if it is time bound, right, so now if you go backwards, मार्च तक क्या हो जाना चाहिए, अप्रैल तक क्या हो जाना चाहिए, अगस्त तक क्या होगा, अक्टूबर तक क्या होगा, दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी, जहां पर भी आपका जिस मंथ का भी गोल है ना, you should be able to come backwards and see कि now what is required at this point of time, right? So this is what, how goals are set and how goals are achieved. So when he says that 2047 we will become a Viksit Bharat, goal achieved, fine, very good. Now achieving this would require, but how do we achieve it? So we need an 8% for a decade or more as per the survey. Now this appears to be a daunting task. अभी हमारा 8% तो है नहीं, कहीं पे 6 के आसपास है, आई थिंक सो, या जो भी है, राइट. दैट इज व्हाट वी नीड टू सी कि अभी हमें अगर 8% इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो वी नीड टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, एंड दैट हैज टू कंटिन्यू फॉर मेनी इयर्स, एंड देन वी विल बी एबल टू सी दैट ओके फाइन वी हैव अचीव्ड दिस गोल एट 2047. विकसित भारत हो जाएगा ओवरऑल. तो ये लगता है थोड़ा सा मुश्किल. Now, to put this growth trajectory in perspective, the economy is expected to grow at 6.4% this year. ये expected है. अब इसका पाथ देखते हैं. ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है. सो दोज पीपल हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड articles based on economics, no, whenever you are solving, right, or you are reading also, तो कईयों को इकोनॉमिक्स में मजा ही नहीं आता है, बोरिंग लगता है. लेकिन आप देखो बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज आप समझते जाओगे ना, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट. उसने क्या कहा है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अचीव करना है तो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा. अचीव करने के लिए गोल सेट किया है, गोल सेट करेंगे तो हमें अब क्या काम करना है, दैट इज व्हाट ही इज कमिंग अप विद दिस. 8% का ग्रोथ हमें चाहिए, but this is what 6.4% this year, between 6.3 and 6.8% in 25-26 as per the survey, and average around 6.5% in 25 and 29 as per the IMF. मतलब हम 6.5% तक अभी एवरेज पहुंचेंगे, उसके बाद हमें इतना करना पड़ेगा कि हमारे एवरेज यहाँ पे आके भी 8% हो जाए. बट व्हाट विल बी द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ? आखिर ये ग्रोथ चलेगा कैसे?
ड्राइवर्स कौन होते हैं? जो ड्राइव करके हमें अपने मंजिल तक लेके जाते हैं। तो हमें इस मंजिल तक लेके कौन जाएगा? ठीक है, कौन से सेक्टर्स इस तरीके से चलेंगे? सो दे वुड बी द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। विथ ग्लोबलाइजेशन ऑन द रिट्रीट, हमने कल या एक दिन पहले और देखा था हमने कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जहाँ पे बिजनेस ट्रांसैक्शंस होती हैं। ठीक है, अब ये रिट्रीट पर है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म होता जा रहा है कंट्रीज में। तो ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा हो नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम 8% तक पहुंचेंगे कैसे? दैट्स द पॉइंट। So with globalization on the retreat, the survey says the domestic growth levers will be relatively more important than the external ones in the coming years. So we need to work in the domestic market. We need to build or make our domestic market very strong. So they will become the drivers of growth. तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, हमें उन पे वर्क करना पड़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना है। This export pessimism at a time when China has registered a trade surplus of almost 1 trillion is rather odd. तो export pessimism मतलब globalization on the retreat बोला ना उसने। तो एक्सपोर्ट पेसिमिज्म है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है एक्सपोर्ट। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जहां पे चाइना ने ट्रेड सरप्लस किया है। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है आपने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। ट्रेड डेफिसिट तब होगा जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, और ट्रेड सरप्लस तब होगा जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। Right, this is a very layman way to understand what is trade deficit and what is a trade surplus. So I hope you have understood this. Now, why is it odd? Because China says that it is with trade surplus, and what we are doing is there is export pessimism here, and these things are like odd, especially considering India's share in global trade. So when China says that it has a trade surplus and India's share in global trade is also quite high, right? So how can it be like इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है चाइना और इंडिया के ट्रेड में? इट रिफ्लेक्ट्स द मोदी गवर्नमेंट्स अप्रोच टू ट्रेड। इससे पता चलता है कि इनका अप्रोच जो है ट्रेड को लेके वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है या प्रोटेक्शनिज्म वाला है। It has been marked more by fear than hope. So, notwithstanding that, the survey argues that sustaining high growth over the next 2 decades will require a deregulation stimulus, not a fiscal or monetary stimulus. Deregulation ka matlab hua. See, you'll get these words in the budget also. I think so. Just a previous 1 or 2 days back, I gave you like disinvestment and all. ये दो तीन वर्ड्स जो मैंने टू रीड लिखा था ना, यू हैव टू नोट दैट डाउन और पढ़ना, और अभी बजट का भी देखना अच्छे से। तो डीरेगुलेशन स्टिमुलस चाहिए। रेगुलेशन मतलब जिसके ऊपर हम अपना कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल थोड़ा सा कम करेंगे तो दैट इज डीरेगुलेशन। जैसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है और हमने अपना पैसा निकाल दिया उस कंपनी से, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज द डीरेगुलेशन स्टिमुलस and not a fiscal related to money or monetary related to the banking parts and all. तो फिस्कल जो अभी बजट हो रहा है वो फिस्कल होता है। ठीक है, इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ पे कितना लगाना है, ऑल दैट थिंग, राइट। मॉनेटरी विल बी द इंटरेस्ट रेट्स दैट द गवर्नमेंट, दैट द आरबीआई विल बी कमिंग अप विद। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो होता है आपको वो करना होता है, फेब्रुवरी में वो भी आएगा। ठीक है, या होगा, वो दिसंबर में लास्ट हुआ था, राइट। सो ये छोटा सा दिया है, बिजनेस ड्राइवर्स है कैश, ग्रोथ, पीपल, प्रॉफिट और एसेट्स। ये सारे हमारे पास होंगे तो हमारी बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगी, पर अभी हमने सेक्टर के हिसाब से नहीं दिया है वो। Now it has mounted a strong argument for rolling back regulation significantly. Again, deregulation means rolling back. Now, putting in the inverted commas means these are the words that the person has used or the survey has given. To put it bluntly, getting out of the way. तो getting out of the way हमने यही किया था, लेजर फेयर पॉलिसी। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो, दैट इज हाउ। पर यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होगा, कैपिटलिज्म जैसे नहीं होगा, पर यहाँ पे एटलीस्ट आप डीरेगुलेट तो कर ही सकते हो। So there can be no quarrels with this. Excessive regulations, after all, increase costs for business. But the onus for deregulation in large measure seems to have been laid at the door of the state governments.
डीरेगुलेशन किसे करना है? स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनकी जिम्मेदारी है. इट इज ऑल्सो ऑड. तो ऑडिटी की बात उसने पहले भी की थी यहाँ पर, ठीक है, कि ये ट्रेड सरप्लस है, सो इट इज रादर ऑड. चाइना का ट्रेड सरप्लस और इंडिया का एक्सपोर्ट पेसिमिज्म. दूसरी बात जो उन्हें ऑड लगी है वो ये है, for the survey to speak about simplification when there has been little progress on reducing the complexity of the GST regime. आप बात करते हो सिंप्लिसिटी की और पढ़ाते हो कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये है प्रॉब्लम. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की आप बात करते हो बट यू हैव डन नथिंग टू रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन. देन हाउ कैन यू टॉक अबाउट और स्पीक अबाउट सिंप्लीफिकेशन? There has been little progress. So little का मतलब होता है not much progress. So there should be efforts made in that direction to remove or reduce the complexity of the GST regime, but nothing of that sort has been done. And we talk about simplification. This is what the author is coming to in a very ironical manner. Moreover, getting out of the way should not be limited to just easing the regulatory cholesterol. The government must get out of business. But despite articulating that, there has been little movement on privatization. ठीक है, गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी, ठीक है, और बिजनेस का काम प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे. तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, उन्हें बिजनेस से हट जाना चाहिए. So the survey is indeed correct when it says that business as usual carries a high risk of economic growth stagnation. अगर बिजनेस एज यूजुअल होगा, जो हमेशा होता रहता है वैसा होगा, तो फिर स्टैग्नेशन आ जाएगा. स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ थमा हुआ पानी, तो वो स्टैग्नेंट होता है, राइट? तो ग्रोथ स्टैग्नेशन हो जाएगा ना. इफ नॉट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नहीं होगा पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेशन हो जाएगी. मतलब अगर 6.5% पे अभी चल रही है, तो 6.5% पर ही ग्रोथ चलती रहेगी, right? Not much, 6.4, 6.6. This will be almost the same thing. So we are not making it to it. And though we are not shifting or declining to 5 also. So economic growth is there. But economic growth stagnation होगा, economic stagnation नहीं है. पैसा बराबर चल रहा है, मार्केट भी अच्छा चल रहा है, that is all okay, fine. But that is to maintain the same thing, that is stagnation. So understand these two words carefully, okay? It is economic growth stagnation, it is not economic stagnation. At the current juncture, bold steps are required. मतलब कुछ ना कुछ तो हमें steps उठाने ही पड़ेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को काम करना पड़ेगा, right? So I hope you have understood this. Now, with rather uncharacteristic frankness, the economic survey talks about the trust deficit among economic agents in the country. लेकिन मेन आइडिया कहाँ थी? ओवरकमिंग विच कुड हेल्प पेव द वे. ठीक है, हमने ये मार्क किए थे ना 3 वर्ड्स, डेफिसिट, ओवरकमिंग और विकसित भारत. तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गई. ठीक है, वाइपिंग ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट इम्पेरेटिव है और ये हमारे पास एजेंडा में आना चाहिए, तो बिकम्स द सेकेंड पॉइंट. Now, building trust again, if you're wiping away the trust deficit, that means you're building the trust now, right? Same thing will be there, but whether it is being seen in the budget or no, हमने यहाँ तक की points identify अच्छे से कर ली थी कि budget में ये दिखना चाहिए, ठीक है? और budget में कैसे दिखेगा ये, it's a daunting task. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 8% चाहिए, तो डेटा बीच में आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, पर उसमें से पॉइंट का निकल के आए कि यार 8% तक अगर हमें पहुंचना है, या विकसित भारत तक अगर हमें पहुंचना है 47 तक, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी daunting. इज लाइक फियर, कॉजिंग फियर, वो होता है ना, एक डॉन्टलेस वॉरियर होता है, मतलब कि जिसे डर नहीं लगता है, निडर. पर ये डॉन्टिंग टास्क है. आई टेक इन द वोकैबुलरी कि वहां पे डर लगता है कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे या नहीं. एक अपहिल टास्क कैसे होता है वो. नाउ according whatever is going on, the major point was that it was Modi ji's approach that was creating this problem somehow to trade. तो गवर्नमेंट का अप्रोच इस तरह से है. और फिर लास्ट पैराग्राफ में आते आते वो बोलेंगे कि गवर्नमेंट को इसलिए बिजनेस से हट जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, राइट? तो डीरेगुलेशन हो गया गवर्नमेंट का बिजनेस से हट जाना.
तो डीरेगुलेशन करेंगे कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, ठीक है। और अगर बिजनेस इसी तरीके से चलता रहा तो फिर हमारी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, और स्टैग्नेंट हो जाएगी तो फिर क्या ही फायदा होगा? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ? बोल्ड स्टेप्स आर टू बी टेकन. So there were 2-3 more words there apart from where we left कि बजट में ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी या नहीं, right? And then what was required is that there should be a government deregulation. And when the government deregulates, right, that means it goes out of, or it is not intervening in the business of the business field. और यहाँ पे बिजनेस फील्ड लिख लेते हैं, बिजनेस सेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इट हैज टू कम अप विथ लाइक इम्प्रूव प्राइवेटाइजेशन. जब ये आउट हो जाएगी तो प्राइवेट प्लेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे. जब प्राइवेट प्लेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो तब तक तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्टैग्नेशन हो जाएगा, right? If this does not happen, then it will be stagnation in the economic growth. And if this happens, but for this to happen, you need bold steps. They are supposed to be taking bold steps. कुछ तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल strongly, ठीक है? Come on, I hope you've done this. So main idea will be survey currently correctly points out the significance of erasing trust deficit. हो गया. Erase, wipe out करना, पूरी तरीके से मिटा देना. So removing regulatory cholesterol, ये भी सही है. Removing regulatory cholesterol is deregulation, and this spirit should find its way to the budget. Budget में भी ये spirit दिखनी चाहिए. Find its way मतलब reflect होना चाहिए budget में. This is all that we were able to understand through the discussion, and I hope now you've understood how to extract the main idea from the passage. So regarding vocabulary, let's see now. Again, be ready with your books. लिखते हुए जाना, तो हमारे पास खूब सारे हो जाएंगे क्योंकि हम जल्दी ही एक I'll try to take a Menti quiz also. देखते हैं क्या करना है हमें. Pave the way, path for is make way for. ठीक है. Taken off मतलब to start. इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी छलांग लगाई नहीं है उसने अभी. टेक ऑफ जैसे एरोप्लेन्स होते हैं, टेक ऑफ करते हैं. इम्पेरेटिव इज समथिंग दैट इज मैंडेटरी. I gave you another word also in the discussion, sine qua non. Right? You cannot do without it. So something that is indispensable. तो बहुत जरूरी हो जाता है किसी काम का करना. That becomes imperative. ठीक है. Articulated the goal. Articulated is right, presenting it very beautifully. ठीक है. उसे बड़ा एक उसके रिटोरिक तरीके से या प्रेजेंट करना किस तरीके से होता है, दैट इज आर्टिकुलेशन. एंड डॉन्टिंग टास्क इज समथिंग दैट इज डॉन्टिंग. आई एम राइटिंग द वर्ड्स. इंटिमिडेटेड होता है इसका मीनिंग. डॉन्टिंग का इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग. एंड इफ आई रिलेटेड टू दिस डॉन्टिंग टास्क, आई कैन यूज इट एज एन अपहिल टास्क. ठीक है. ये होता है अपहिल टास्क, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. और कल हमारे पास थे सिसिफियन साइकिल. ठीक है. वो समझना तुम कि मतलब गोल तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम बार बार फिसल जाते हैं. सो अपहिल टास्क होगा मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, हो तो जाएगा पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. और कैसे होगा? अगर हमने बोल्ड स्टेप्स लिए. ठीक है. तो मतलब मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है. ठीक है. ट्रैजेक्टरी में जेक्ट वर्ड आ जाता है. एक रूट वर्ड है. जेक्ट का मतलब होता है थ्रो. ट्रैजेक्टरी इज टू थ्रो, राइट? नो, जेक्ट मीन्स टू थ्रो. ट्रैजेक्टरी इज द पाथ दैट इज फॉलोड. कई बार ये मिसाइल्स के हिसाब से काम आ जाता है. ऑर्बिट बोल सकते हैं आप इसको, पाथ बोलते हैं. ऑर्बिट होता है. ऑर्बिट वैसे अक्सर गोल घूमने वाला होगा.
राइट? पाथ का मतलब होता है किस रास्ते से अपना बिजनेस कैसे चल रहा है, नेक्स्ट 20 years में आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, आप किस तरीके से आपकी कंट्री को गोल 2047 विकसित भारत वाला जो गोल है वहां तक लेके जाओगे, तो द रोड मैप दैट यू क्रिएट, राइट, दैट विल बी योर ट्रेजेक्टरी. क्लियर? सो नाउ योर टास्क विल बी जेट के साथ यू नीड टू राइट डाउन एटलीस्ट 7 words. टेक इट, थिंक एंड देन राइट डाउन. नहीं आता है तो फिर हम कभी भी यूज वो बना लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, पर फिर भी आप जेट के साथ कर सकते हो. और बहुत इजी वर्ड्स हैं. ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ मैंने समझा लिया है तुम्हें. ड्राइवर्स यानी जो आपको उस ग्रोथ की डायरेक्शन में, गोल अचीव करने की डायरेक्शन में लेके जाते हैं. ठीक है. Export pessimism also, that you are not very optimistic about the export. The export is not very like prospering कि exports increase होते गए, नहीं. ये export pessimism आ जाता है. You don't look positively towards export. Why? Because you are going for the protectionism thing. And deregulation stimulus is something that is used as an incentive, पर वो deregulation के लिए चाहिए तुम्हें. ठीक है. रेगुलेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इट. लेड एट द डोर ऑफ, अपॉन एट द डोर ऑफ आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, दीज आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू रीड ऑन, राइट? जंक्चर में आई एम गिविंग यू अनदर रूट वर्ड. सो आज आपके पास जे के साथ जेक्ट हो गया, दैट इज टू थ्रो. ठीक है. और इफ आई गिव यू 2-3 वर्ड्स नाउ, ठीक है, आपने अभी तक नहीं लिखा होगा तो एब्जेक्ट हो जाता है. एक ट्रैजेक्टरी तो था ही से, राइट? प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्टर यू कैन राइट, राइट? इंटरजेक्शन यू कैन राइट, जो बीच में हम वर्ड जैसे थ्रो कर लेते हैं. अलास, वाओ, हुर्रा, वी रन द रेस. ठीक है, ये सब तो हमने पढ़े हुए होंगे. बस वो बीच में एकदम कहानी जब चलती है ना, तो बीच में जो आपके एक्सप्रेशंस आते हैं एकदम से, वो इंटरजेक्शंस होते हैं. दे आर थ्रोन इन बिटवीन, राइट? सो अभी दूसरा वर्ड हो जाता है हमारे पास जंक्ट. तो जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन, राइट? सो यू हैव जंक्शन. So now see here you have conjunction which joins two phrases, two words or two sentences, no? So conjunction and junction. It will be quite easy for you. Then you have this word juncture. So adjunct, adjoining ये भी हो जाता है. ठीक है. If I write this adjoin, see you will be able to understand it then better. Those who don't know, of course, and note them down. So here we have now more to read related to what we have been reading in the last 2 days. ठीक है. So we should deep seek. अब ध्यान से समझो. Deep seek. अब वो कैपिटल डी वाला जो एआई जो हम पढ़ रहे थे पिछले 2 दिन से, वो नहीं है. But then they are using the same word, but this word means that you need to like वो होना चाहिए अपने पास, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए. ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो कई सारी चीजें जो हो रही हैं अपनी कंट्री में, यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड दैट टू वेरी डीपली. सो दिस इज डीप सीक, राइट? एआई वाला भी डीप सीक है. तो द वे हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड, this becomes an example of pun. Now, this is an article that is actually quite interesting, but related to what we have been doing. आज जो हमने किया वैसे ही, the growth path. अब यहाँ पे ये बिजनेस स्टैंडर्ड का है आर्टिकल. ठीक है, मैंने बीएस लिख लिया है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ये. और ग्रोथ पाथ आज जो आपने समझा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स बेस्ड रहेगा ये. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल, प्लीज टेक अ स्टेप अहेड एंड रीड दिस आर्टिकल. यू विल गेट इट ऑनलाइन, कहीं भी मिल जाएगा ये. ग्रोथ पाथ है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है. ठीक है. अब दूसरा है कैंडिड अप्रेजल. सो दिस कैंडिड अप्रेजल वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू द सर्विस. ठीक है, ये है द हिंदू का बिजनेस लाइन का आर्टिकल है. द हिंदू बिजनेस लाइन, एंड दिस इज बिजनेस स्टैंडर्ड, right? So I would suggest please read these multiple articles so that you will be able to right, start understanding a particular genre also. So that's all. And of course,
If I'm suggesting, I really wish that you read, and I hope and I assume that you'll be reading. So stay positive, stay logical, be positive, and be logical. Thanks a lot. See you.